بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غریب عوام کے لیے روٹی دال کھانا محال ہو گیا۔ شہر میں گندم کی 100 کلو کی بوری 50 روپے تک کے اضافے سے آٹا مزید مہنگا ہو چکا ہے۔ کے وعدے چوتھے سال بھی وفا نہ ہو سکے۔ مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال کر رکھ دیا۔ ڈالر کی قدر بڑھنے سے دال ماش 20 روپے اضافے سے 240 روپے تک پہنچ گئی۔ وہیں فی کلو مسور کی دال بھی سینچری کراس کر گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فی کلو چینی 105 روپے سے 110 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی تو اتنا ہے کہ کوئی چیز، یہ صرف گھی یا جو بھی چیزیں ہیں سب، یہاں تک کہ نمک میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں دیکھ کے جب جنرلی ایک آدمی کے بجٹ پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ مہنگائی ہر چیز پہ شامل ہو رہی ہے۔ ادھر گندم کی فی بوری پر 50 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں علاقائی بازاروں میں چھوٹی چکی کا فی کلو آٹا 84 روپے، فائن آٹا 80 روپے اور 2.5 نمبر آٹا 70 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آٹے کی صورتحال اس وقت جو تقریباً آج سے ہفتہ 10 دن پہلے تھی، ابھی بھی تقریباً ویسے ہی چل رہی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی جو قیمت ہے اس میں ایک 50 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مزید کمی ہو جائے گی، لیکن کمی آٹے کے ریٹ میں نہیں ہوئی ہے۔ تو ابھی اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر عوام کو مزید ہم کو ریلیف دینا ہے تو گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ عالمی سطح پر مہنگائی کے عوامل جہاں مقامی مارکیٹوں پر انداز ہوتے ہیں، تو وہیں پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ پیداواری لاگت میں اضافے اور مہنگائی کی آگ کو مزید بھڑکانے کا سبب بنتا ہے۔ کیمرامین کاشف کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ مہنگائی کی چکی میں پسے شہریوں پر بجلی گرانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کہ الیکٹرک نے نیپرا کو بجلی 29 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی، جس پر شہریوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خود تو صحیح بندہ ہے، لیکن اس کے جو ساتھ جو اس کے وزراء ہیں وہ تو صحیح نہیں ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس کی ٹیم ہی صحیح نہیں ہے۔ مر جائے گی عوام، بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی اتنا ہو گئی ہے، غریب بندہ تو نہیں رہ سکتا نا۔ 150 روپے لیٹر کبھی بھی نہیں ہوا ہے پیٹرول، ابھی لیکن ہو گیا ہے۔ کہاں جائیں؟ آٹا دیکھو، چینی دیکھو، گھی دیکھو، اتنا مہنگائی ہو گئی ہے، کہاں جائے گا غریب بندے؟ وہ کہتا ہے نا کہ عوام کو خوشحال رہے گی، گھبرانا نہیں ہے، تو وہ اس لیے کہہ رہی ہے۔ جب عوام ہی نہیں رہے گی تو گھبرائے گا کون؟ عمران خان صاحب نے بات کری ہے غربت ختم کریں گے، تو غربت تو ایسی ختم ہوگی جب غریب مریں گے سارے، تو بس یہ اسی لیے بڑھا رہیں گے۔ اور آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اب ہر ماہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے شہر قائد کی عوام کیا کہتی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ خود تو صحیح بندہ ہے، لیکن اس کے جو ساتھ جو اس کے وزراء ہیں وہ تو صحیح نہیں ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس کی ٹیم ہی صحیح نہیں ہے۔ مر جائے گی عوام، بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی اتنا ہو گئی ہے، غریب بندہ تو نہیں رہ سکتا نا۔ 150 روپے لیٹر کبھی بھی نہیں ہوا ہے پیٹرول، ابھی لیکن ہو گیا ہے۔ کہاں جائیں؟ آٹا دیکھو، چینی دیکھو، گھی دیکھو، اتنا مہنگائی ہو گئی ہے، کہاں جائے گا غریب بندے؟ وہ کہتا ہے نا کہ عوام کو خوشحال رہے گی، گھبرانا نہیں ہے، تو وہ اس لیے کہہ رہی ہے۔ جب عوام ہی نہیں رہے گی تو گھبرائے گا کون؟ عمران خان صاحب نے بات کری ہے غربت ختم کریں گے، تو غربت تو ایسی ختم ہوگی جب غریب مریں گے سارے، تو بس یہ اسی لیے بڑھا رہیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے غربت میں کمی اور معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے رورل سپورٹ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے چیئرمین رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک شیخ سلطان خان کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات کی۔ اجلاس میں چیئرمین PND حسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکرٹری ساجد جمال اوبڑو، صوبائی سیکرٹری سندھ رورل سپورٹ پروگرام شیرین ناریجو نے بھی شرکت کی۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے غریب اور پسماندہ کمیونٹیز کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یونین کونسل بیسڈ پاورٹی ریڈکشن پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے روز کاروبار کا شدید مندی پر اختتام ہوا۔ 100 انڈیکس 744 پوائنٹس کی کمی سے 45,745 کی سطح پر بند ہوا۔ ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ مندی کا شکار، سرمایہ کار محتاط رہے۔ 100 انڈیکس 744 پوائنٹس گر گیا، 46,000 کی نفسیاتی حد بھی کھو بیٹھا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 45,745 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک بروکرز کا کہنا ہے کہ شرح سود میں اضافے کے باعث سرمایہ کار محتاط ہیں۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاری برقرار رکھنے کے لیے شرح سود کو مستحکم کرنے کے ساتھ ڈالر کی قدر کو بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ انٹرسٹ ریٹ اگر 1% بڑھتا تو اتنا پریشر نہیں آتا، اب 1.5% بڑھ گیا ہے، اور اس کے علاوہ کہ اگلے مہینے دسمبر کی 14 تاریخ کو مانیٹری پالیسی ہے، اس کے اندر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، تو اس کی وجہ سے سرمایہ کار محتاط ہو گئے اور اپنی لکویڈٹی کو لاس کے اندر سیل کر رہے ہیں۔
क्योंकि आगे कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। देखिए वो तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी और लग रहा था, लेकिन एक और ये कि टी बिल्स का 6 मंथ्स का जो रेट आया 10.03 वो एक डिस्टर्ब कर रहा है। IMF की भी खबर है कि IMF की सारी चीज़ें मेटेलाइज ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है कि फ्यूचर में इंडिकेट कर रहा है कि आप डबल डिजिट में आ जाओगे। जब डबल डिजिट में आओगे तो ऑब्वियसली यहाँ से पैसा जो है वापस जाएगा, फिक्स की तरफ जाएगा। तो यही वजह है कि लोग थोड़े से लैक लस्टेड और मार्केट भी नीचे ही जा रही है, लोग सपोर्ट भी नहीं है मार्केट में। सरमायाकार कहते हैं स्टेट बैंक ने दिसंबर में फिर पॉलिसी रेट का ऐलान करना है, जिसके बायस मार्केट पर मजीद दबाव बढ़ गया है। हुकूमत बेहतरी के इक़दाम करे। कैमरामैन इमरान खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ डॉलर देने की सिफारिश कर दी है। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 174 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोना 400 रुपये सस्ता हो चुका। आलमी मालियाती इदारे ने छठे जायजे के तहत मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे सस्ता होकर 173 रुपए 5 पैसे तक गिर गया और कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे कमी से 174 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 176 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 199 रुपए 50 पैसे और बरतानी पाउंड 1 रुपए कम होकर 236 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना 60 डॉलर सस्ता होकर 1839 डॉलर फी औंस का हो गया, जिसके बाद मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 400 रुपए सस्ता होकर 1,23,400 रुपए का हो गया और 10 ग्राम सोना 342 रुपए कम होकर 1,05,796 रुपए का हो गया है। सनतकारों और ताजरों ने IMF की कड़ी शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं मुआहदे के वजह से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे समेत महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा। सनतकारों और ताजरों ने हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सदर नासिर हयात मगू कहते हैं सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए IMF के डू मोर का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। एक तरफा शराइत को मानना मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं होता। 5 अक्टूबर से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, 10 अक्टूबर तक मामला फाइनल होता। उनका असल स्टैंड यही था कि आप ये चीज़ें एग्री करके गए थे, आपने अमल दरामद नहीं किया। तो अगर जब आदमी वहाँ जाता है IMF में तो जो चीज़ पॉसिबल है वही कमिट करे, जो पॉसिबल नहीं उसको कमिट करके और फिर एक नई मुसीबत खड़ी करना, मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब नहीं है। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने 1 अरब डॉलर मिलने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस खबर में आवाम के लिए कोई खुशी की खबर नहीं, महंगाई का नया तूफान आएगा। ज्यादा तशवीश इस बात की है कि 1 बिलियन क्यों आया भाई, 1.05 क्यों? हमारी तो बात थी 6 बिलियन की, तो 6 बिलियन रुपए का जब उन्होंने साइन कर लिया तो 6 बिलियन की बात थी, 6 बिलियन आना चाहिए था। जो आम आदमी है उसके लिए इसमें कोई खुशी की बात मुझे नजर नहीं आ रही। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि IMF प्रोग्राम से पेट्रोल की मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, जिसका बोझ इंडस्ट्री और आम आदमी पर पड़ेगा। असल बात यह है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है इससे तकरीबन 25 रुपए हमारी पेट्रोलियम पे कीमतें बढ़ेंगी। ये किस्तों में बढ़ेंगी, लेकिन ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 25 रुपए पर लीटर आएगा। बिजली की कीमतें जो है वो तकरीबन 5.5 रुपए पर यूनिट बढ़ेंगी। इसी तरह गैस की कीमतें हैं। तो ये ओवरऑल जो है इससे जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। मुआशी तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने कहा कि प्रोग्राम से सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, मुआशी शरह नमू सुस्त, जबकि बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा। बैंक्स में सेविंग अकाउंट रखने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफे के बाद 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट्स में मुनाफा 1.5% इजाफा करके 7.25% कर दिया है। कमर्शियल बैंकों में सेविंग अकाउंट रखने वालों के लिए खुशखबरी। शरह सूद में इजाफे के बाद स्टेट बैंक ने सेविंग अकाउंट के मुनाफे में 1.5% का इजाफा कर दिया। अब 1 दिसंबर 2021 से कमर्शियल बैंकों में सेविंग अकाउंट में मुनाफा 7.25% मिलेगा। स्टेट बैंक ने सेविंग अकाउंट होल्डर को हिदायत की है कि अगर 1 दिसंबर 2021 से सेविंग अकाउंट पर कम मुनाफा मिले तो पहले उस ब्रांच में शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत हल न होने की सूरत में बैंक सारिफ स्टेट बैंक से राब्ता करे। स्टेट बैंक ने बैंकों को ये भी हिदायत की है कि 1 जनवरी 2022 से कस्टमर बैंक ब्रांच में आए बगैर अकाउंट को डिजिटल तौर पर खोला जा सके। साथ ही इसके लिए बैंकों को रिमोट बायोमेट्रिक के साथ अकाउंट खोलने की हिदायत कर दी गई है। PTI रहनुमा लैला परवीन पर साबिक शौहर के तशद्दुद के मामले पर पुलिस ने लैला परवीन के साबिक शौहर को साइड सुपर हाईवे से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम को चेक बाउंस के केस में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने पुलिस थाने में भी मुद्दई और लैला परवीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। लैला परवीन का कहना है कि उनका साबिक शौहर मुतादिद शादियां करके अपने ससुराल वालों से पैसे बटोरने में मुलव्वस है। मुलजिम के खिलाफ साबिका बीवियों की जानिब से भी पाकिस्तान के दीगर शहरों में मुकदमात दर्ज हैं। लैला परवीन के साबिक शौहर को साइड सुपर हाईवे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन ने नाज़िम जोखी और फहमीदा सयाल के मामले पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज करते हुए स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव कर दिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। असम्बली में थल कैनाल 2 और जलालपुर कैनाल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सिंध असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा हंगामा आराई। नाजिम झोंकियों और फहमीदा सयाल के मामले पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन आपे से बाहर हो गई। अपोजिशन की नाजिम झोंकियों और फहमीदा सयाल से मुतालिक करारदाद लाने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर ने एजेंडा चलाने पर जोर दिया, जिस पर ऐवान में शोर शराबा मच गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर रोस्टम का घेराव कर लिया और नारेबाजी करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये हाउस आपने बुलाया, इसमें भी आप सीरियस नहीं है। आप लोग सिंध की आवाम से सीरियस नहीं है। ऐवान में ग्रेटर थल कैनाल 2 और जलालपुर कैनाल की तामीर के खिलाफ सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरों ने करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद की MQM और GD अरकान ने भी हिमायत की। PTI अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। MQM ने शहर के मसाइल पर टोकन वॉकआउट किया। बलूचिस्तान को पानी हम दे नहीं पा रहे और आप कह रहे हैं 1,80,000 जलालपुर कैनाल के थ्रू हम नई जमीन आबाद करेंगे। या तो शॉर्टेज नहीं है, या इरसा झूठ बोल रहा है, या पानी अवेलेबल है जो हमारा चोरी हो रहा है। ऐवान में नाजिम झोंकियों, फहमीदा सयाल समेत मुख्तलिफ अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत के दौरान भी अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख, सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और डिप्टी स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान ने गुरु नानक की सालगिरह से मुतालिक करारदाद भी मंजूर कर ली, जिसके बाद इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मामला सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जवाब सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात जमा करवा दी। जवाब में कहा गया कि 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके ज़रूरी दस्तावेज़ात कमीशन के हवाले किए जाएंगे। बसूरत दीगर 1 दिसंबर से सिंध भर में हल्का बंदियाँ शुरू कर दी जाएंगी। सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए वक्तन फ़वक्तन मोहलत तलब करती रही। सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें सिटी 21।